السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کی لائیو کالز ہوں گی، میرے جوابات ہوں گے، مجھے صحیح ڈیٹ آف برتھ، صحیح ٹائم آف برتھ مہیا کیجیے گا تاکہ میں بہتر سے بہتر اپنا علمی تجزیہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں، اور باقی یقینی اور حتمی ذات تو اللہ کی ہے، اٹس جسٹ سائنس۔ تو میں اکارڈنگ ٹو اسٹرالوجی آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا، باقی اللہ کا اختیار ہے، وہ چاہے تو ہو، وہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو۔ جی کالر سے بات کرائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے گا خاتون۔ جی مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا تھا۔ جی ان کی ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ بتائیے۔ 19 ستمبر 2004، شیخو پورہ میں پیدا ہوئے دوپہر کے 2 بجے۔ 19 ستمبر 2004، کتنے بجے آپ نے فرمایا؟ دوپہر 12 بجے۔ دوپہر 12 بجے، اور آپ نے کہا شیخو پورہ میں؟ جی جی۔ ایک منٹ دیجیے گا۔ شیخو پورہ دوپہر 12 بجے 2004۔ اچھا تو اچھا ہے ماشاءاللہ، تھوڑا ضدی ہوگا یہ، وہ اس میں فطرتاً دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت۔ اب جو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کی زندگی کا ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا ہے۔ آپ نے اس کو تعلیم کس شعبے میں دلوائی؟ جی یہ ڈیٹا سائنس کر رہے ہیں اور فری لانسر کرنا چاہتے ہیں، فری لانسنگ۔ سپر، کر لے، یہ ڈیٹا سائنس میں بھی جا سکتا ہے، یہ آپ کو میں کہوں گورنمنٹ میں بھی جا سکتا ہے، حکومتی حلقوں میں، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ یہ اگر اللہ کا حکم ہوا تو یہ بہت اچھا بیوروکریٹ، ایڈمنسٹریٹر بھی بن سکتا ہے۔ اس سے ایک میری بات مانیے، اس سے ایک دفعہ سی ایس ایس کا اٹیمپٹ ضرور کروائیں۔ کیا اس کا ارادہ ہے کہ میں کبھی کسی موقع پہ سی ایس ایس کے لیے بیٹھوں؟ بالکل ارادہ ہوا ہے۔ بتائیے خاتون، ذرا ٹائم شارٹ ہوتا ہے میرے پاس۔ جی آواز نہیں آ رہی تھی مجھے، ارادہ ہے بالکل سی ایس ایس کا۔ ہاں بالکل، اس کو بولیے گا آنکھ بند کر کے سی ایس ایس کے ایگزام میں بیٹھے، ابھی نہ بیٹھے، یہ بیٹھے، 1 منٹ دیجیے مجھے، کسی کا بھلا ہو جائے تو پورا بھلا ہو۔ یہ بیٹھے 2026 کے جون کے بعد اٹیمپٹ کرے، ہو سکتا ہے یہ سی ایس ایس کا ایگزام کوالیفائی کر جائے، اور یہ آرمی میں بھی جا سکتا ہے، فورسز کو بھی جوائن کر سکتا ہے، یہ اس کی کنڈلی میں یوگ بنے ہوئے ہیں۔ اور اگر اللہ کو منظور ہوا، جیسے یہ سی ایس ایس کر لے، آرم فورسز جوائن کر لے، اس کے علاوہ تیسرا آپشن یہ، پھر یہ ملک سے باہر چلا جائے گا، اور اس کو زندگی میں ایک چیز تنگ کرے گی، بتا دوں آپ کو؟ جی جی بتائیں۔ اس کی 1 سے زائد شادیاں ہوں گی، اگر یہ سن رہا ہے تو اس سے پوچھ لیجئے گا۔ چلیں چھوڑیں، اس بات کو چھوڑیں، ابھی یہ اس کو تعلیم کی طرف فوکس رہنے دیں۔ ان کے لیے آپ ایک وظیفہ پڑھیے گا، بلکہ یہ خود پڑھیں، جب سارے کام کرنے دنیا کے تو اللہ کا نام انسان آدھا 1 گھنٹہ نکالنا چاہیے، اور وظیفہ ایڈیشنل ہوتا ہے، نماز، روزہ، دیگر وہ تو 5 ڈیوٹیاں ہیں، وہ تو کرنی ہیں۔ تو یہ پڑھیں، اول و آخر درود ابراہیمی 5 مرتبہ، درمیان میں یہ پڑھیں 5 مرتبہ سورہ فاتحہ، 5 مرتبہ سورہ اخلاص، 100 مرتبہ رب زدنی علما، 100 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، 100 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ سبحان ربی العظیم، اور 100 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ پڑھ کے اللہ سے دعا کریں۔ تابناک فیوچر ہو سکتا ہے، پیسے کا اس کو زندگی میں مجھے نہیں لگتا کبھی پرابلم ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو بہت کچھ دے گا۔
ایک چیज़ کا ख्याल रखिएगा, इसका खून जो है वो बहुत हल्का है, इसको नज़रें बहुत जल्दी लगेंगी, वो ख्याल रखिएगा. और इसके लिए आप एक काम करती रहा करें कि अल्लाह के नाम पे किसी भी भूखे को खाना खिला दें, किसी भी दिन खिला दें इसके हाथ से, ये बहुत बड़ा सदका होता है. बहुत शुक्रिया खातून. नेक्स्ट कॉलर से बात कराएं. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम, फरमाइएगा बीबी. भाई मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है. उनकी तारीख़ पैदाइश और वक्त पैदाइश फरमाइए. 16 मई 2011. 16 मई 2011. टाइम ऑफ बर्थ? टाइम ऑफ बर्थ सुबह 4 बजे. सुबह 4 बजे. और कहाँ पैदा हुए? बिहाड़ी में. बिहाड़ी, ये जो बोरे वाला मुल्तान के पास है? जी. अच्छा. बिहाड़ी पाकिस्तान. दो हजार आपने फरमाया 4 और 2011. हाँ. यही फरमाया ना आपने? जी जी 2011. अच्छा. तकदीर माशाल्लाह से इसकी बहुत अच्छी है. एक चीज़ मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी बात लग्नेश अपना बहुत अच्छा जायचा है खातून. पता नहीं क्या बात है, इत्तेफाक से पहला भी इतना खूबसूरत आया, दूसरा भी थोड़ा सा बस गंद हुआ है. वो गंद ये है कि राहु केतु इसके ज़रा ख़राब हो गए, लेकिन खैर डजंट मैटर. इसको ये बताएं, इस वक्त जो इसका दौर चल रहा है 2024 के बाद से जो शुरू हुआ, यानी जो ये 25 इसका चला, इसने ज़रा सा इसकी चीज़ों को डिस्टॉर्ट किया है, यानी बिखर गई. अच्छा खातून, 1 मिनट होल्ड कर लीजिएगा, वक्फे का टाइम हो चला है. ख़वातीन हज़रात, एक इनसे वक्फे में बात करा दो. एक वक्फ़ा लेता हूँ, उसके बाद आपकी मज़ीद कॉल्स लेता हूँ. एक दफ़ा फिर हुमायूं महबूब आपको खुश आमदीद कहता है. जी, कॉलर से बात कराइएगा. हेलो. जी अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम, फरमाइएगा खातून. जी मैं अपनी एक निवासी के बारे में पूछना है, उसकी जिंदगी के मुतल्लिक जी. वो कैसी होएगी या उसका आगे क्या हो सकता है? कैसे मैं उसका कोई शादी के लिए कैसे कब होगी, कोई रिश्ता अच्छा मिलेगा? मैं कोशिश करूँगा. आप मुझे उसकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ बताइए. उसकी डेट है 31 जुलाई 2002 सुबह 7:30 बजे बहरीन में पैदा हुई. 31 जुलाई 2002 तो और जी. सुबह 7 बजे 7:30 बजे 7:30 बहरीन में. जी, एक सेकंड दीजिएगा, जी. क्योंकि कंट्री अलग हो गया, थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे. बहरीन. वैसे तो आपकी नवासी अच्छी है. सबसे बड़ी बात, थोड़ी सी बुरा ना मानिएगा, थोड़ी सी सेल्फिश भी है ये अपने काम को सबसे ऊपर रखती है, बाकी तमाम चीज़ों को पीछे रखती है. शादीशुदा ज़िंदगी, इसके लिए एक उसूल देखें. असल अभी ये कहीं जॉब कर रही है? नहीं, अभी तो इसकी यूनिवर्सिटी खत्म होने वाली है. ये जॉब करेगी और इसके लिए इसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो नस्बुलैन है, गोल है, वो है इसका कैरियर. ये कैरियर ओरिएंटेड होगी. थोड़ा सा इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये होगा, ये बोलेगी मेरा चाहे अलग हो, छोटा सा घर हो, मगर बस मैं सबसे आइसोलेट होके, अलग होके अपना जो भी कर रही हूँ करूँ. इंथुजियास्टिक बहुत है, एनर्जेटिक बहुत है. अब जहाँ तक शादी का मामला आता है ना, तो शादी इसकी हो जाएगी अल्लाह के हुक्म से, मेरे पंजतन पाक के सदक़े. रिश्ता तो अभी भी आ सकता है इसका, ये जो अभी टाइम चल रहा है, मगर ये टाइम इसके लिए मुनासिब नहीं है. मैं एक बात आपको ये कहूँगा कि इसकी शादी में आप जल्दबाजी मत करिएगा, क्योंकि इसकी शादी, हाँ देखें, इसके जायचे में मंगलिक दोष लगा हुआ है. कम से कम 28 साल के बाद करिएगा, जो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी का उसूल है, ताकि वो क़ुव्वत कम हो जाए. मगर ये कि और भी इसके पीछे एक और वजह भी है. दूसरा, इसको कहिएगा शादी इसकी थोड़ा सा
एज डिफरेंस होगा। अगर इसने कंप्रोमाइज़ किया और अपना स्ट्रॉन्ग हेड वहाँ पे ना, यानी अपनी मनमानी नहीं की, तो ज़िंदगी इसकी बहुत बेहतर है। दुनियावी ज़िंदगी तो बहुत बेहतर है, शादी की ज़िंदगी भी बहुक्म अल्लाह इसकी बेहतर हो सकती है, मगर थोड़ा सा इसको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। अब ये इसको मोहब्बतें और चाहतें इतनी मिली हैं कि थोड़ी सी उसमें खुद सरी आ गई है, बुरा ना मानिएगा। और एक इनकी वालदा को कहिएगा इसके जिस्म पे मैरून और ब्राउन कलर के कपड़े आएंगे, काले रंग का कपड़ा पहनेगी तो लाइफ में प्रॉब्लम होगा। और हर मंगल के दिन छोटी छोटी गोश्त की 9 हड्डियाँ, चिकन के अलावा मटन हो, बीफ हो, बैल हो, भैंस हो, वो इसके जिस्म से लगा के प्लास्टिक में लपेट के और सूरह नास पढ़ के दिल में आवारा कुत्तों को डलवा दें। और हर हफ्ते के दिन 260 ग्राम काली दाल, जैसे आज सैटरडे, किसी को दे दें, ये बेहतरी हो जाएगी। ये तो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ हैं। दूसरा, इसको मजहबी लिहाज से पढ़ना चाहिए अव्वल व आखिर, ये सिर्फ शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा हूँ। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी 8 मरतबा, दरमियान में 107 मरतबा, या वदूदो या लतीफ़ो या अज़ीज़ो या रहमानो या रहीमो 8 मरतबा, सूरह फातिहा 8 मरतबा, सूरह इखलास 8 मरतबा, सूरह इन्ना अंज़लना जिसको हम कहते हैं सूरह क़द्र, इन्ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। 30वें पारे की है। 9 मरतबा सूरह फातिहा और 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ के इसके लिए दुआ कीजिए। और दुआ आपकी जामे होनी चाहिए, जिसमें आप कहें कि अल्लाह ताला जो इसके हक़ में बेहतर है वो करते। अपनी मर्ज़ी ना लगाइएगा, अल्लाह के कोर्ट में बॉल डालिएगा। और मेरा ईमान और यकीन है कि जो भी अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ देता है और अल्लाह ताला पे भरोसा करता है, तो अल्लाह ताला अपने बंदे के लिए कभी बुरा नहीं चाहता। बाकी मेरा रब करम करेगा इंशाअल्लाह पंजतन पाक के सदक़े, और ये तमाम बातों पे अमल कीजिएगा। बहुत शुक्रिया खातून। नेक्स्ट कॉलर से बात कराइएगा। हेलो। हेलो जी फरमाइएगा। जी, मैंने अपने भाई के बारे में पूछना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ बताइए। मैंने अपने जी आप अपने भाई के बारे में पूछें, लेकिन आपने अपने टेलीविज़न का वॉल्यूम को बंद कर दीजिए। वो जब आप बात करती हैं ना तो वो टकरा के वापस आती है। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, फरमाइए। भाई की डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ। वो समझ ही नहीं रही। वो टेलीविज़न भी खोली हुई है और मुझसे भी बात कर रही है। नहीं हो सकेगी खातून, इतना कीमती टाइम होता है। बेचारे दूसरा कॉलर जो लाइन में होता है उसको प्रॉब्लम होता है। आई एम सॉरी, आपने मेरी बात पे तवज्जो नहीं दी। नेक्स्ट कॉलर से बात कराइएगा। हेलो। देखें, आप रिसीवर प्रॉपर नहीं रखते, दूसरा कॉलर जो है वो स्विच नहीं कर पाता। हेलो। एक तो देखे वो भी डिस्टर्ब हो रही है कॉल, अगली कॉल भी डिस्टर्ब हो रही है। सब्र कर लें, आराम से रिसीवर रख दें ताकि जो पिछला कॉलर है वो आराम से जंप कर सके। और मैं जब बात कर लूँ तो आप रिसीवर को रख दें। उससे क्या होता है, टाइम ज़ाया होता है और जो कॉलर बेचारा वेट कर रहा होता है उसका हक़ मारा जाता है। खैर ख़वातीन हज़रात, एक ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के बाद आपकी मज़ीद कॉल्स लेता हूँ। एक दफ़ा फिर हुमायूं महबूब आपको खुशामदीद कहता है। और ख़वातीन हज़रात, हर शो में आपसे अर्ज़ करता हूँ कि बराए मेहरबानी सोशल मीडिया पे मेरे नाम से लोगों ने बहुत से फ्रॉड और झूठी जो हैं कनेक्टिविटीज़ बना रखी हैं, ख़ुसूसन फेसबुक, टिकटॉक, लिंक्डइन, मैसेंजर। इन पे ना जाइएगा। सिर्फ मेरा यूट्यूब चैनल है जो हुमायूं महबूब एस्ट्रोलॉजी के नाम से है, उसके अलावा सब फ्रॉड है उस पर। और मैं यहाँ करता हूँ लाइव कॉल्स आपकी। उसके अलावा मेरा ऑफिस है जो पीसी होटल कराची में है, वहाँ पे दोपहर के 2:30 से शाम के 6:15 साढ़े 6 तक आप मेरे असिस्टेंट से प्राइवेट कमर्शियल कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और वहाँ का नंबर है, कोड के साथ बता रहा हूँ, 02135685501।
दूसरा नंबर है 02135685021। और जब आप बैरून मुल्क से कॉल करें तो आप कहें हुमायूं साहब को वीडियो पर दिखा दीजिए, मैं आपको देख लूँ, आप मुझको देख लें, ताकि दोनों तरफ इत्मीनान हो जाए। और अगर आप विद इन पाकिस्तान भी चेक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और वीडियो पर देख सकते हैं। मैं मखसूस दिन बैठता हूँ, बाकी अल्लाह करम करने वाला है। ये ज़रूरी बात थी इसलिए आपको बताई। जी, कॉलर से बात कराइएगा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, फरमाइए खातून। सर, मैंने अपने भाई के बारे में पूछना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी 9 जुलाई 2003। 9 जुलाई और 2000। एक सेकेंड 9 जुलाई 2003। वक्त है तकरीबन रात 12 बजे 12:30 इतना। देखें, 12 बजे कुछ और बात होगी, 12:30 बजे कुछ और। कहाँ पैदा हुआ है? जी वो जिला मंडी बहाउद्दीन का एक गांव है इधर। अच्छा, एक मिनट लीजिएगा मुझे। आपने फरमाया मंडी बहाउद्दीन। अगर एक मिनट मुझे रुक जान, देखने दें कि ये आपके भाई का है। देखें खातून, अगर ये हॉरोस्कोप जो है, बाय द वे, ये अगर 12-20 का है तो कुछ और हो जाएगा, और 12-20 से पहले है तो कुछ और होगा। अब ये मसला हो रहा है मेरे लिए। अब अगर इस पे मैं चलूं तो ये बताइए, ये अपनी वालदा से बहुत ज़्यादा अटैच हैं, मोहब्बत जी बहुत। क्या आपने महसूस किया इनकी गुफ्तगू में ज़रा तलखी आ जाती है? नहीं भाई, मेरा बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि बदतमीज़ है, मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ब्लंट हो जाते हैं। सच्ची साफ बात कर दी, अब वो दूसरे को बुरी भी लग रही है तो ये नहीं सोचा। दिल के बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्या और आप लोग क्या 4 या 5 बहन भाई हैं? जी हम 3 बहन भाई हैं, एक बहन है और 2 भाई हैं। दोनों भाई मुझसे छोटे। कोई बच्चा आपका या आपका भाई बहन मिसकैरेज हुआ, या वालदा का कोई आपको पता है? ये मुझे जी कोई हुआ? जी मेरा एक भाई जो है इन भाइयों से बड़ा था। बस सही है। एक कम से कम 4 होने चाहिए थे, और अब नहीं है तो फिर इसका मतलब दुनिया से चले गए। अच्छा, अब एक बात बताइए कि अल्लाह आपका भला करे। 1 मिनट मुझे और दीजिए। हाँ, देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, बंदा बहुत अच्छा है, लेकिन ये नहीं हो सकता, हर आदमी की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आता है। क्या आप अपने किसी जानने वाले या रिश्तेदारों में इसकी शादी करने के बारे में सोच रहे हैं? जी सोच रहे हैं। सोच समझ के फ़ैसला कीजिएगा, और करने को बुराई कोई नहीं है। माशाल्लाह इसका ये खुद बहुत अच्छा बंदा है, लेकिन अब जाहिर है जो कुंडली के योग होते हैं वो तो मेरे अल्लाह के अलावा किसी के इख्तियार में नहीं है, वो बदल सकता है। और अभी मेरा एक मशवरा आपको ये, अभी इसको पैसा कमाने की तरफ रहने दें, कारोबार की तरफ या जो भी काम करना चाह रहा है उस तरफ इसका ध्यान रखें। और एक चीज़, इसको आपने एजुकेशन किस में दिलाई? ये 10th तक पढ़ा है, फिर हाफिज़ कुरान भी है माशाल्लाह। हाँ वो तो है माशाल्लाह। इसका मज़हब का खाना तो बहुत अच्छा है, वालदा का बड़ा फरमा बरदार है। दूसरों से शायद प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन माँ की बड़ी दुआएं इसकी ज़िंदगी में चलेंगी। और एक चीज़ मुझे और बता दें ताकि मैं कंफर्म ही हो जाऊँ, ये 12 के बात है, वैसे तो अब तक सब कंफर्म हो रहा है। आप लोगों का जिस घर में आप रहते हैं, ये आपका ज़ाती मकान है? जी अपना मकान है, ज़मीन हमारे बस। अब्बू के नाम है। हाँ वही जाहिर है। आप याद रखिएगा, आपके भाई पैदा हुए हैं 12:22 पे। क्या कहा मैंने आपसे? 12:22। कभी ना कहिएगा 12 से 12:30, ये लोगों को पता नहीं है, सारा टाइम ही का तो खेल है। अब ये भाई आपका, अगर इसकी शादी के हवाले से आप सोचें तो मैं आपको कहूँगा कि कर तो अभी भी सकते हैं, लेकिन आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप करें जनवरी के बाद, इस हवाले से सोचिएगा अगले साल।
اور ایک کام آپ ضرور کروا لیجئے اس کے ہاتھ سے. ایک تو ہر پیر کے دن 70 گرام کچے چاول اللہ کے نام پہ یا تو اس کے ہاتھ سے پرندوں کو ڈلوا دیں, کسی انسان کو دینے تو 250 گرام دے دیجئے. اور ہر منگل کے دن چھوٹی چھوٹی گوشت کی 9 ہڈیاں, چکن کی 9, باقی مٹن, بیف, بیل, بھینس جس کی بھی ہو, اس کے ہاتھ سے آوارہ کتوں کو ڈلوا دیجئے. اور دوسرا ایک چیز کا خیال رکھیے گا, جہاں اس نے باسی یا خراب کھانا کھایا نا, اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی. سن رہی ہیں آپ میری بات؟ جی میں سن رہی ہوں. اس کو باسی روٹی, باسی کھانا, فروزن فوڈ کبھی نہ دیجیے گا, جنک فوڈ نہ دیجیے گا. اس کا اسٹمک جو ہے نا اس میں بلوٹنگ ہونے لگے گی, آنتوں میں اور اسٹمک میں یہ پرابلم ہوگا. باقی اس کے لیے آپ پڑھیے گا, اور یہ پڑھے مثلا اول و آخر درود ابراہیمی 5 مرتبہ, درمیان میں 100 مرتبہ یا اللہ یا ذوالجلال والاکرام, 100 مرتبہ مکمل استغفار, 100 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ سبحان ربی العظیم, 3 مرتبہ سورہ فاتحہ, 3 مرتبہ سورہ اخلاص, 3 مرتبہ سورہ کوثر, 3 مرتبہ سورہ عصر اور 3 مرتبہ سورہ نصر. اتنی صورتیں بہت چھوٹی صورتیں ہیں, اللہ تعالیٰ اس میں بہتری آ جائے گی. اب خواتین و حضرات اندر بتا رہے ہیں مجھے کہ کالز کا بہت رش ہے. انشاءاللہ میں یہاں سے آف کروں گا, آؤٹ آف اسکرین ہو جاؤں گا, پروگرام ختم ہو جائے گا, لیکن آپ کی کالز کو میں تھوڑی دیر تک اور لے لوں گا. تو خواتین و حضرات اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ پر, مجھ پر, میرے وطن پاکستان پر, پاکستانی قوم پر, امت مسلمہ پر اپنا خاص رحم و کرم کرے. مجھے کل صبح 10 بجے تک کے لیے اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ.